میں اے حیدری ایم اے اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قصیدے اور مرثیے کو پڑھانے سے پہلے مجھے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کے جو محاسن ہیں ان پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی قصیدہ اور مرثیہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ محاسن شاعری کا مطلب ہوتا ہے شاعری کے حسن، اور حسن کی تلاش دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے نہ ہو۔ سب کو زندگی میں حسن کی تلاش رہتی ہے۔ اسی حسن کی تلاش نے انسان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حسن میں اضافہ کیسے ہو، وہ حسن میں اضافے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کرے، اس کے لیے مشق و ریاض کیسے کرے، ایجادات و اختراعات کا سلسلہ کیسے شروع کرے، یہ دروازے جو ہے وہ کھلے۔ حیات اور کائنات کے ہر شعبے میں خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی زندگی کا محور و مرکز ہے۔ ہر انسان پرفیکشن اور تکمیل چاہتا ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کام بہتر طریقے سے ہو، اچھے سے اچھا ہو۔ شاعر بھی سماج کا فرد ہے۔ جب وہ شعر کہتا ہے تو اسے بھی اس بات کی جستجو رہتی ہے کہ اس کا شعر جب وہ عوام کے سامنے پیش کرے تو وہ اپنے صوتی اعتبار سے، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے سننے والوں کو متاثر کرے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسے بھی اپنے فن میں نکھار کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، اور اسی تلاش کے نتیجے میں شاعری میں محاسن وجود میں آئے، جنہیں محاسن شاعری کہا گیا۔ انہی کو علم معنی و بیان میں ثنائے اور بدائے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کی معنوی حیثیت کیا ہے اور الفاظ کا صوری حسن کیا ہے، یعنی لفظوں کی صورت کس طریقے سے بہتر بن سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے۔ ہم لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کانوں کو سنتے ہوئے کیسے اچھے لگیں اور وہ کانوں سے دل کے اندر اترتے چلے جائیں، اس کی جو ہے وہ شاعر کو تلاش رہتی ہے۔ اسی علم کی مدد سے ادب و شاعری کے معنوی اور ظاہری حسن کے جتنے بھی گوشے ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی علم معنی و بیان میں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ثنائے لفظی کہی جاتی ہے اور دوسری قسم کو ثنائے معنوی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر شاعری میں شاعر محض لفظی خوبیوں تک اپنے آپ کو محدود رکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں لفظی خوبیاں موجود ہیں اور وہ ثنائے لفظی کہا جائے گا۔ اور شاعر اگر لفظی خوبیوں کے ساتھ ساتھ شعر میں معنوی حسن کی تلاش بھی کرتا ہے اور معنوی حسن بھی پیدا کرتا ہے تو اسے حسن معنوی کہتے ہیں۔ معنوی حسن کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ معنی پیدا کرنا۔ ثنائے کا اصل حسن لفظی اور معنوی حسن میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ ثنائے کی اصل جو ہے وہ ثنا ہے، یعنی بنانا۔ بدائے کی اصل جو ہے وہ بدا ہے، بدی ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنا۔ شاعر ان صنعتوں کے استعمال سے حسن پیدا کرتا ہے، حسن بناتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب میں ان صنعتوں کی جو شاعری میں حسن پیدا کرتے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ ادب اور شاعری انسان کے جذبات اور احساسات کے اظہار کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اور بہت ہی حسین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی فیلنگز کو، اپنے جو ہے وہ ایموشنز کو بڑی خوبصورتی سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے اور یہی شاعری کا فن بھی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جذبات اور احساسات ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں،
वो हम दूसरों तक किस तरह कम्युनिकेट करें। इसके कम्युनिकेट करने का, इसको दूसरे तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया अदब और शायरी है। और अदब और शायरी के फन में शायर और अदीब को हमेशा नए नए पहलू तलाश करने होते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ये भी है कि इंसान यकसानियत से बहुत जल्दी ऊब जाता है। वो न एक जैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, न एक जैसी ग़िज़ा खाना पसंद करता है, न एक जैसा एटीट्यूड चाहता है। ये इसमें तब्दीली चाहता है। ये इंसान की फितरत है। हर लम्हा वो बदलते रहना चाहता है। आप देखिए, वो अपने लुक को बदलता है, अपने हेयर स्टाइल को बदलता है, अपने कपड़ों को बदलता है। शायर भी अपने ख्यालात को बयान करने के लिए इसीलिए नए नए पैराए ढूंढता है। इसी बात को अनीस ने कहा है, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। और ये 100 रंग से जो है वो एक फूल का मजमून उसी वक्त बांधा जा सकता है जब शायर को अपने एहसासात व जज्बात की अदायगी के लिए एक से एक हसीन पैराए इजहार उसके पास मौजूद हो, उसके पास लफ्जों का एक अंबार हो, एक जखीरा हो। एक ही बात को वो मुख्तलिफ अल्फाज की तरतीब के जरिए जो है वो अदा करता रहे। और यही हसीन पैराए इजहार शायर को तशबीहात की तरफ, इस्तियारात की तरफ, मजाज व किनाए की तरफ ले जाता है। और वो अपने एहसासात व जज्बात को इन तशबीहात व इस्तियारात के पैराए में ढाल कर सनाए और बदाए की शक्ल में जो है वो मुरस्सा करके हमारे सामने पेश करता है। किसी भी शय की जरूरत उसकी अहमियत और उसकी इफादियत को जाहिर करती है। सबसे पहला सवाल यही है कि अदब और शायरी में इन महासिन की जरूरत क्या है। तो इन महासिन की जरूरत यह है कि सनतें शायरी का जेवर कही गई हैं। और जेवर आपको पता है कि दुल्हन अगर जेवर से आरास्ता न हो तो दुल्हन नहीं समझी जाती। दुल्हन उसी वक्त दुल्हन होती है जब वो जेवरों से, 16 सिंगार से सजी संवरी आरास्ता पैरास्ता हो। ये महासिन भी शायरी रूपी दुल्हन को आरास्ता करने में और उसे जो है वो खूबसूरत बनाने में बहुत काम आते हैं। ये उरूस शायरी को हुस्न और दिलकशी के साथ साथ असर की कैफियत से आशना करते हैं। ये सनतें न हों तो शायरी लफ्जी बाजीगरी के अलावा कुछ न रहेगी। मगर इससे मेरी मुराद हरगिज ये नहीं है कि शायर इनके चक्कर में पड़कर लफ्जों की भूल भुलैया में गुम हो जाए। मसूद हसन रिजवी अदीब उर्दू के बहुत अच्छे मुहक्किक और नाकिद गुजरे हैं। वो सनतों की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं, सनतों का इस्तेमाल बजाते खुद शायरी नहीं है, लेकिन शायर अगर इनके इस्तेमाल में सलीके और इम्तियाज से काम ले तो कलाम के हुस्न में और कलाम के असर में इजाफा पैदा कर सकता है। डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर ने अपनी किताब में लिखा है कि सनतें बजाते खुद शायरी का मकसद नहीं होती, लेकिन शायरी का मकसद इन सनतों के बगैर पूरा भी नहीं होता, क्योंकि इन्हीं के जरिए शेर के तासुर में इजाफा होता है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि सनतें दो किस्म की होती हैं, एक लफ्जी सनत लफ्जी कहलाती है, दूसरी सनत मानवी कहलाती है। और जब हम बहुत सारी सनतों को जो है वो इकट्ठा करेंगे तो जमा के लिए लफ्ज सनाए इस्तेमाल होगा। और इल्म मानी व बदी की, इल्म मानी व बयान की किताबों में आपको सनाए लफ्जी और सनाए मानवी के अल्फाज देखने को मिलेंगे। लफ्ज की जाहिरी और बातिनी खूबियों की तरफ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, सबसे पहले 724 हिजरी में अब्दुल्ला बिन मोतज़े अब्बासी ने तवज्जो की और उस वक्त उसने शायरी के और अदब के महासिन की तादाद 17 बयान की थी। फिर हिंदुस्तान में मौलवी नजमुल गनी ने अपनी किताब में 111 लफ्जी और मानवी खूबियों का जिक्र किया। इसके बाद जब मसूद हसन अदीब ने अपनी किताब लिखी हमारी शायरी, तो उसमें उन्होंने जो है वो महासिन शायरी की निशानदेही करते हुए इनकी तादाद 129 बयान की। सनाए लफ्जी क्या है और उनकी कितनी किस्में हैं।
सनाए लफ्जी से यह पता चलता है कि कलाम में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो किन किन रियायतों और किन किन हुनरमंदियों से बरते गए हैं। इन खूबियों से कलाम खुशगवार हो जाता है। यही खूबियां मजमून के फिक्री और मानवी औसाफ को भी चमकाती हैं। ये लफ्ज ही हैं जो मानवी हुस्न की तरफ हमारे जहन को मुंतकिल करते हैं। इनकी इल्म मानी और बयान के माहिरीन ने 50 से जायद किस्में बयान की हैं, जो आप आईने बलागत या हदायकुल बलागत वगैरह में मुलाहजा कर सकते हैं। सनाए मानवी क्या हैं, उनकी कितनी किस्में हैं? तो सनाए मानवी का जहां तक ताल्लुक है, इनके जरिए कलाम में मौजूद मानवी अबाद यानी मानी के डायमेंशंस का जो है वो पता चलता है। शेर का जो तासुर होता है उसमें इजाफा होता है। जज्बे और एहसास की तरसील में अपने इमोशंस को जो है वो कम्युनिकेट करने में किसी कमी का एहसास नहीं होता। सनाए मानवी की अकसाम भी सनाए लफ्जी ही के बराबर हैं। उर्दू में इसकी भी तकरीबन 50 किस्में राइज हैं। सनाए लफ्जी और मानवी में से ये 139 जो हैं, इनमें से कुछ आपके निसाब में दाखिल हैं, जिन्हें मैं यके बाद दीगरे आगे की क्लासों में बयान करूंगा। शुक्रिया।